Hello students, today we will discuss about the epidemiology and prevention of hypertension. So what are things included in this discussion today is we will discuss about the what are the recommended level of salt intake. We will discuss about the steps approach in hypertension surveillance. What we will discuss about the guidelines of hypertension. Okay, what we will discuss about the guidelines for physical activity, how much a physical activity one must do. Okay, so these are the we will discuss about the dash diet. So, okay, salt recommendation important for viva step approach is in itself is a short note. Guidelines for hypertension is again a viva question, short note, short note. So don't miss this topic, it is an important one. What is hypertension? Condition in which the blood vessels have persistently raised blood pressure. Okay, either systolic or diastolic or both. Most common we see this type of pattern. Okay, so blood pressure is raised both systolic or diastolic or any one of those. Okay, let us discuss about the guidelines of hypertension. One guideline is given by AHA, American Heart Association. Another guideline is given by European Society of on Hypertension. One guideline is European. So let us see what American guidelines say. Hypertension is classified as systolic above 130 and diastolic above 80, and it is divided into two stages. Stage 1, 130 to 139 systolic, and divided by diastolic 80 to 89. Systolic above 140 and diastolic above 90 is classified as stage 2. Treatment starts early, है ना? Treatment start early above 130 by 80, and here treatment start 140 by 90. Target blood pressure for all age group, for all age group 130 by 80. Here above 65 it is 140 by 90, है ना? And less than 65 it is less than 130 by 80. So this is a conservative approach. European approach is a conservative approach, and American Heart Association approach is an aggressive approach. Grade 1, 2, 3 European Society have 3 grades in its classification. Okay, and above 140 by 90 is called as hypertension in this European classification. Classification of hypertension. There are mainly two types of hypertension. First is primary hypertension, and second is secondary hypertension. Primary hypertension, also known as essential hypertension, is the most common type of hypertension where the etiology is not known. Secondary hypertension is due to underlying medical conditions, maybe a renal cause, hyperthyroidism, Cushing syndrome, pheocytochroma. There is one or other underlying medical condition in secondary hypertension. See, what is tracking of blood pressure? Those people who have low blood pressure in early life, okay,
will have low blood pressure in later life as well. Those who have high blood pressure in early life, है ना, will have higher blood pressure in later life. Okay, this is known as tracking of blood pressure. Problem statement. Coming to the problem statement, globally 1.28 billion people of 30 to 79 years of age have hypertension. 1 in 5 those who have hypertension have it under control, means 1 control hypertension, 4 uncontrolled hypertension. Ratio is 1 is to 4. Okay, major cause of hypertension is major cause of premature deaths. It causes 7.5 million deaths per year. Okay, 7.5 million deaths per year. This is the problem statement. What is the prevalence of in India of hypertension in India? Around what? 18%. All age groups. Okay, we are not talking about any male prevalence or female prevalence. We are talking about the whole population, including children and adults. Rule of halves. What rule of halves says that out of total 100% people living with hypertension, only 50% are diagnosed, means 100% में से only 50% are diagnosed एंड उनको अपना हाइपरटेंशन का स्टेटस पता होता है। जिनको पता होता है उनमें से 50% लोग ट्रीटमेंट लेते हैं और जिनको ट्रीटमेंट मिलता है उसमें से 50% लोगों को कंट्रोल अचीव होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जितने लोग भी हाइपरटेंशन से रह रहे हैं ओनली 50% अनडायग्नोज्ड, out of which only 50% of treated. Out of those who are treated, only 50% achieve the control. Half are diagnosed multiplied by half are treated multiplied by half are controlled. So 1 in 8 achieve adequate control as per rule of halves. Okay. Coming to the risk factors of hypertension, these are high salt intake is a risk factor, obesity and overweight are risk factors. So BMI, if BMI is above 25 to 29.9, we call it as overweight. This is the risk factor for hypertension. Majorly it is classified into two groups risk factors: modifiable. High salt intake is a modifiable risk factor. Similarly, obesity and overweight is also modifiable, and above 30 is obesity. Okay, physical inactivity is also a risk factor for hypertension. Unhealthy diet, modifiable risk factor. Alcohol consumption, modifiable. Smoking, stress, poor sleep, all these are modifiable risk factors. We can change these risk factors. Okay, what we cannot change is non-modifiable risk factors. These include age. Higher the age, higher the risk of hypertension. Sex, male are more prone to hypertension compared to female. Race, ethnicity, family history, genetics, coexisting medical conditions, okay, are the risk factors. Urbanization is one of the important risk factors for hypertension because urbanization has its own drawbacks. It
there is lack of space for physical activity, there is more pollution, there is reduced uh, uh, there is reduced more of resources, but there is more competition for the resources which are available. So this comes with stress. So urbanization is also a non-modifiable again this is a non-modifiable risk factors for hypertension. Clinical features of the hypertension: most of the time a person with hypertension is asymptomatic, there is no signs and symptoms. So how will we identify? हम identify कैसे करेंगे? We will identify it through screening. Okay. Other clinical factors features are shortness of breath, chest pain and palpitations, headache in the occipital region, dizziness which is often associated with postural hypertension, nosebleed, family history. Okay. Complications of hypertension includes aneurysm. Normally the blood vessel is like that. In aneurysm there is widening of the blood vessels. Chronic kidney disease, kidney damage. High blood pressure can cause kidney damage, it can cause retinopathy, it can cause heart failure, it can cause peripheral artery disease, it can cause stroke also. Management of hypertension. Okay, so management and prevention includes many things: dash diet, step approach, drug therapy. Okay, so let us start with the primordial prevention. Primordial prevention is why when we call it as primordial, when we talk about prevention we talk about two factors: the risk factor and disease. Here risk factor is absent and disease is also absent. So what are the primordial prevention? What are the modes of intervention under primordial prevention? Broad strategies. First mode of intervention, under which we do strict government policies and regulations. What strict policy we can apply? Truth labeling, how much sodium as per recommended daily allowance is present in the food item. Private sector should make available foods with low salt, ऐसा मैंडेटरी किया जा सकता है फॉर प्राइवेट सेक्टर. एंड एट द सेम टाइम वी विल इंक्रीज अवेयरनेस. अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंज्यूमर को फोर्स करता है कि वो चूज़ करे फूड विथ लो सोडियम वाले फूड को चूज़ करे. रिड्यूसिंग सॉल्ट इनटेक फॉर बेटर हेल्थ. WHO रिकमेंड करता है लेस देन और इक्वल टू 5 ग्राम पर डे, इक्वल टू 1 टीस्पून से कम सॉल्ट रिकमेंड करता है फॉर एन अडल्ट. ओके. चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन मेनली अबव 2 ईयर्स टू 18 ईयर्स, उनके लिए तो और भी कम. ओके. तो हमें कभी भी WHO रिकमेंड करता है कि वी शुड चेक food labels of processed food because processed food contains excess amount of sodium. We should eat more fresh foods. Fresh food में fruits, vegetables and unprocessed food आते हैं. Reduce packed food and fast food. Cook with less salt. Limit salt during cooking recommend करता है WHO. Salt को रिप्लेस करने के लिए हम लोग हर्ब्स, स्पाइसेस एंड अल्टरनेटिव्स को यूज़ करते हैं फॉर फ्लेवर, यूज़ कर सकते हैं. एंड अवेयरनेस एंड हैबिट्स को चेंज करना है. हाउ वी शुड बी अवेयर ऑफ हिडन सॉल्ट्स इन द फूड आइटम. खासकर ऐसे फूड्स जिसमें सॉल्ट मेंशन नहीं है, वी शुड नॉट कंज्यूम दोट फूड आइटम्स एंड वी शुड डेलिबरेटली चूज फूड विथ क्लियर फूड लेबलिंग. ओके. व्हाट हम घर पे क्या क्या कर सकते हैं? ओके. वी शुड नॉट ऐड सॉल्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फूड. वी शुड ऐड, हम तो खाने में कब डालें फिर भाई? एट लास्ट. ओके. लास्ट में जब हम गैस बंद करने वाले होते हैं तब हमको सॉल्ट डालना है. इससे होगा ये कि
सॉल्ट में टेस्ट भी सबसे ज़्यादा रहेगा सॉल्ट का, और एक्सेक्ट अमाउंट ऑफ सोडियम जो है वो भी कम रहेगा। ओके, डू नॉट यूज टेबल सॉल्ट, वी शुड यूज ऑलवेज यूज आयोडोनाइज सॉल्ट। डू नॉट कंज्यूम सॉल्टेड फूड और स्नैक्स, एक्सेसिव सॉल्ट के साथ जो विजिबल सॉल्ट है वैसे फूड और स्नैक्स को हमको नहीं खाना है। ऑलवेज चूज लो सॉल्ट कंटेंट अल्टरनेटिव्स। ओके, प्राइमोडियल प्रिवेंशन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिजिकल एक्टिविटी। So what are the WHO guidelines for physical activity? So children and adolescents 5 to 17 years of age के लिए क्या recommendations हैं? WHO recommends minimum 60 minutes per day. What it recommends? Minimum 60 minutes per day, moderate to vigorous physical activity. मॉडरेट टू विग्रस फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंड करता है 60 मिनट या उससे ज़्यादा पर डे, प्लस मसल एंड बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फॉर मिनिमम 3 days और मोर पर वीक। ओके, अडल्ट्स के लिए क्या रिकमेंडेशन है? फॉर 16 to 64 ईयर्स एज, अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको 150 टू 300 मिनट्स, 150 मिनट्स मतलब 2.5 से आपको मिनिमम 3-3.5 घंटे एक्सरसाइज करना है पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी के। सिमिलरली अगर आप विग्रस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 75 to 150 मिनट्स पर वीक इज़ रिकमेंडेड, या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जिसमें मॉडरेट और विग्रस इंक्लूडेड है एंड इक्विवेलेंट टू एनी टू ऑफ दीज। ओके, थ्रू आउट द वीक मॉडरेट या विग्रस का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ दिस। ओके, ओल्डर एडल्ट्स में भी सेम रिकमेंडेशन है एज नॉर्मल एडल्ट्स, बट हियर द पर्पज इज उनके बॉडी में बैलेंस रहे और स्ट्रेंथ रहे, सो दैट उनका जो अचानक से वो गिर जाते हैं टू प्रिवेंट फॉल्स। देखिए ओल्ड एज में फॉल्स से होने वाले गिर जाने से, अचानक गिर जाने से बहुत ज़्यादा मॉर्टिलिटी या मॉर्बिडिटी होती है। सो इनमें फिजिकल एक्टिविटी का एक मेन पर्पस ये भी होता है कि बॉडी में बैलेंस बना रहे एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ बना रहे। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस फॉर प्रेग्नेंट एंड पोस्टमार्टम वुमेन? if there are no contraindications mainly कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कारण होता है। सो प्रेग्नेंट और पोस्टमार्टम वुमेन में अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्टिविटी इज रिकमेंडेड। मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी इज रिकमेंडेड फॉर हाउ मच? 150 मिनट्स पर वीक। ओके, इज रिकमेंडेड। Primary prevention. Okay, again we talk about two factors, risk factors और डिसीज। रिस्क फैक्टर्स क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए? प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट होता है पर डिसीज एब्सेंट होता है। सो व्हाट वी विल डू? health education is the first mode of intervention. What is health education? Mode of intervention in primary prevention. रिस्क फैक्टर है जैसे कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, तो हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। ओवरवेट या ओबेसिटी है उसके ऊपर फोकस करेंगे अपना हेल्थ एजुकेशन। सॉल्ट कंजम्पशन इंक्रीज्ड है तो हम उसको डिक्रीज करना है करके हेल्थ एजुकेशन देंगे। ओके, एल्कोहल इनटेक अगर ज़्यादा है तो उस पर फोकस करेंगे, टोबैको पे फोकस करेंगे हमारा हेल्थ एजुकेशन। व्हाट इज डाइट डाइट या डैश ईटिंग प्लान? डैश का फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ओके, डैश होता क्या है? हार्ट हेल्दी ईटिंग प्लान डिजाइन्ड टू लोअर द ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ।
हमें क्या क्या ज़्यादा खाना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लो फैट या फैट फ्री डायरी खाना चाहिए, डेयरी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, पोल्ट्री, बीन्स जिसमें फैट कम हो, है ना, वैसे वाले बीन्स या नट्स खाने चाहिए, हेल्दी ऑयल्स खाने चाहिए। हमें क्या क्या लिमिट करना है? सोडियम, सैचुरेटेड फैट्स को लिमिट करना है, एंड एट द सेम टाइम वी शुड यूज शुगर ड्रिंक्स एंड स्वीट्स स्पेरिंगली, ओकेशनली यूज करना है। हमको ये सब लिमिट करना है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पे हमको फोकस करना है? सोडियम, सॉरी, लो सोडियम एंड फैट तो करना ही है, and at the same time higher amounts of, we should eat those foods which have higher amount of potassium, calcium, magnesium, fiber and protein. what this helps, ये सब करने से क्या होगा? ब्लड प्रेशर लो होगा, एलडीएल जो भी लो होगा, these आर बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से कॉमनली नोना जाता है इसको, है ना। ओके, एंड ये सब कम होने से क्या होगा? हार्ट डिसीज और स्ट्रोक का रिस्क कम होगा। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। ओके, सो की फीचर क्या है डैश डाइट का, कि ये एक फ्लेक्सिबल प्लान होता है, और इसमें वो ऐसे फूड्स इंक्लूड होते हैं जो मेनली आपके डेली फूड्स में होते हैं। ओके, नो स्पेशल प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड इन दिस डैश डाइट। Let us see the example of dash diet. Example of dash eating plan जिसका कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी या कैलोरी का है। ओके, आपको डैश डाइट लेस देन 1300, जिसका टारगेट 1300 है, जिसका टारगेट 1600 है, जिसका 2000 है, जिसका 20, ऐसा सबका प्लान मिल जाएगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ऐसे पर्सन के लिए डैश डाइट बना रहे हैं जिसका टारगेट है 2000 कैलोरी पर डे। एंड अब देखिए, इसमें फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स, और इधर सर्विंग्स पर डे का सर्विंग्स है ये, है ना। और इधर जो फूड आइटम्स है वो है वीकली वाले फूड आइटम्स हैं। वीकली वाले में क्या क्या आते हैं? नट्स जिसमें फैट ज़्यादा है, सीड्स या बीन जिसमें फैट ज़्यादा है, उसको हमको 4 to 5 सर्विंग्स ही खाना है पर डे, और स्वीट्स लेस देन 5 सर्विंग्स पर डे। ग्रेन्स हैं, मीट्स है जिसको 6 to 8 सर्विंग्स पर डे खाना है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं जिनको 4 to 5 सर्विंग्स खाने हैं, लो फैट या फैट फ्री डेयरी फैट्स एंड ऑयल्स जिसको 2 to 3 सर्विंग्स पर डे खाने, और सोडियम शुड बी लिमिटेड टू लेस देन 23 मिली, लेस देन इक्वल टू 2300 मिलीग्राम पर डे। ओके, नियर इतना, नियर अबाउट 5 to 5, इतना सोडियम जो है 5 to 5.5 ग्राम सॉल्ट में होता है। ओके, डैश ईटिंग प्लान में क्या क्या ईट दिस। ओके, and what we should limit is given. Okay, this is a pictorial diagram: vegetable, fruit, whole grains, fat free, dairy, fish, poultry, beans with low fat, nuts and seed with low fat, vegetable oils कम सर्विंग्स के साथ, और फैटी मीट्स को अवॉइड करना है, फुल फैट डेयरी को अवॉइड करना है, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस को अवॉइड करना है, स्वीट्स को अवॉइड करना है। हमें खाने में कभी भी ऊपर से बार बार या हाई सोडियम वाले फूड्स को इनटेक को लिमिट करना है। ओके, ये सब डैश डाइट फॉलो करने से क्या होता है? एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो डिक्रीज़ होता है, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सो कैन कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। ओके, सेकेंडरी प्रिवेंशन, अगेन हम यहाँ पे हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट एज पर NPCDCS करेंगे, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज एंड स्ट्रोक। ओके, एंड कैंसर ऑल्सो।
रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, और डिसीज़ भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है, ओके अभी तक प्राइमरी प्रिवेंशन में डिसीज वॉज एबसेंट, सो वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट देयर। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मोड ऑफ इंटरवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन में होता है अर्ली डायग्नोसिस, सो स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे। एंड ट्रीटमेंट तो हम लोग ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, ओके एल्गोरिथम्स के बारे में बात करेंगे, ओके मूविंग टू द टॉपिक। स्क्रीनिंग में हम व्हाट वी विल स्क्रीन इज ब्लड प्रेशर, बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट सरकमफ्रेंस, पेरिफेरल पल्स पल्पेशन, हियरिंग ऑफ ब्रूट। ब्रूट हम कहाँ कहाँ सुनेंगे, रीनल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, एब्डोमिनल आर्टरी, वो जहाँ जहाँ मेजर आर्टरीज आती हैं वहाँ पे। आई एग्जामिनेशन फॉर रेटिनोपैथी, ओके सो स्क्रीनिंग। लैब टेस्ट, कभी भी हम फार्माकोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, व्हाट थेरेपी, फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी जब भी स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमको ईसीजी करना है, यूरिन एनालिसिस करना है, ब्लड शुगर करना है, ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन टू किडनी फंक्शन के लिए, ओके फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल को चेक करना है। मिनिमम ये 5 टेस्ट करना है, यूरिन एनालिसिस, ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन एंड फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, ओके क्लासिफिकेशन एज पर ओके हम NPCDCS के हिसाब से क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं। व्हाट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 120/80 mm ऑफ Hg को हम बोलते हैं नॉर्मल। अगर सिस्टोलिक 120 से 139 के बीच में है और डायस्टोलिक 80 to 89 के बीच में है तो वी कॉल इट एज प्री हाइपरटेंशन। स्टेज 1 इज 140 to 159 सिस्टोलिक एंड 190 to 99 diastolic, okay stage 1, stage 2 is, so every stage has its own treatment, okay so stage 2 is systolic above 160, above or equal to 160, and diastolic above or equal to 100 mm of Hg, okay lifestyle modification, any stage, any whether it is a pre-hypertensive stage or stage 1 or stage 2 must include लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओके सभी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐड रहेगा ही रहेगा। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो व्हाट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन लेस देन 5 ग्राम, वेट रिडक्शन, आपने को वेट ऐसा रिड्यूस करना है कि BMI अगर ओबेज हैं तो लेस देन 30 लाना है, फिर धीरे से BMI को लेस देन 30 से लेस देन 25 लाना है। सो व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ BMI, 18.5 से 24.9 को हम नॉर्मल बोलते हैं एज पर WHO। लेकिन ये 18.5 to 23.9 हम इंडियन पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हैं, फॉर मोर स्ट्रिक्ट हैं। वेट रिडक्शन हम इंडियंस को ज़्यादा करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन, ओके एक्सरसाइज के लिए हमने गाइडलाइंस पढ़ चुके हैं, चिल्ड्रंस, अडल्ट्स, ओल्डर अडल्ट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए टोबैको एंड अल्कोहल को स्ट्रिक्टली कम करना है या स्टॉप करना है, एंड हेल्दी डाइट, डैश डाइट के बारे में हम पढ़े हैं।
डैश डाइट में भी हम एज पर कैलोरी टारगेट पढ़ते हैं, ठीक है। एंड अगर मॉडरेट एक्टिविटी वाला कोई पर्सन है, अगर हैवी एक्टिविटी वाला पर्सन है, तो हर किसी का कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे अलग है। सो उसके अकॉर्डिंगली उसका सर्विंग्स होगा, जो सर्विंग अलग अलग फूड्स का होगा वो डिसाइड होता है। ओके, स्टेज 1 का ट्रीटमेंट। ओके, स्टेज 1 वाज व्हाट? स्टेज 1 वाज above and equal to 140 to 159 systolic. Okay, and और डायस्टोलिक में अब 90 to 99 के बीच में डायस्टोलिक। ओके, सो व्हाट इज रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट? लाइफस्टाइल, है ना, एंड सिंगल ड्रग, लाइफस्टाइल एंड सिंगल ड्रग। सिंगल ड्रग में मेनली एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अल्टरनेटिव है एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ओके, लोसर्टन, telmisartan, these type of drugs are can be given as single drug therapy is usually given, and लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो रहेगा ही रहेगा। ओके, स्टेज 1 का ट्रीटमेंट में ये इंक्लूडेड रहता है। So stage 2, what is stage 2? Stage 2 is if the systolic blood pressure is above 160 mm of Hg and diastolic blood pressure is above 100, above or equal to 100 mm of Hg. Okay, so what is recommended here? Lifestyle modification तो रहेगा ही रहेगा, plus two drugs mainly amlodipine plus thiazide diuretics. Amlodipine is calcium channel blocker and thiazide diuretics में क्या क्या आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। Okay, so it includes amlodipine and hydrochlorothiazide, or amlodipine can be combined with ACE inhibitors such as telmisartan and okay, losartan, anything. Stepwise approach. Okay, what is stepwise approach for add single drug? If not control, add ACE inhibitors or angiotensin receptor blockers. If still not control, add diuretics. And ये मेनली क्या होता है, दिस गाइडलाइन इज मेनली फॉर PHCs, एंड इफ स्टिल नॉट कंट्रोल्ड अंडर diuretics by diuretics, then we will refer to higher centers for higher centers में CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेज, यहाँ हम रेफ़र करते हैं टू रूल आउट secondary causes of hypertension. Okay, renal और pheocytochroma, Cushing disease, है ना, various type of causes को rule out करते हैं, then we will deal with that type of situation. स्पेशल कंडीशंस हैं डायबिटीज़, या अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है तो वी विल प्रीफर एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। प्रेगनेंसी में लेबेटेलॉल बीटा ब्लॉकर या मिथाइल डोपा अपन प्रेफर करेंगे। एंड एल्डरली में लो डोज से स्टार्ट करना है। वाई? पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन से फॉल से इंजरी होने के चांसेस हैं, इसीलिए हमेशा हम लो डोज से स्टार्ट करके डोज टाइट्रेशन धीरे धीरे आगे की तरफ करते हैं। ओके, फॉलो अप, देयर इज
Individualization of treatment is required. Okay, so for follow up we call the patient in 15 to days to 1 month, okay, 2 to 4 weeks, and adjust the dose and drug if needed. When to refer, कहाँ से, पीएससी से ऊपर हायर सेंटर में कब रेफ़र करेंगे, जब ब्लड प्रेशर 180 या 100 से ऊपर होता है और ऑर्गन डैमेज है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन है या रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है। ओके, कोई किसी और मेडिकल कंडीशन से हो रहा है तो सेकेंडरी, या फिर अगर किसी भी ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन बोला जाता है। ठीक है। टारगेट ब्लड प्रेशर एनपीसीडीसीएस के हिसाब से जनरल पॉपुलेशन में लेस देन 140/90 mm of Hg, ओके, एंड फॉर डायबिटीज़ एंड सीकेडी एंड ऑर्गन डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हमारा डायबिटीज़ और सीकेडी पेशेंट में नॉर्म्स थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पे अपना टारगेट ब्लड प्रेशर है 130/80। ओके, स्टेप्स अप्रोच। हमेशा कोई भी डिसीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसका सर्वेलेंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ वी विल मॉनिटर द सिचुएशन इन द कम्युनिटी। हम सिर्फ कम्युनिटी में प्रिवलेंस बढ़ तो रहा है कि नहीं देखते हैं, हम सिर्फ सर्वेलेंस एक चीज़ का नहीं करते हैं, कम्युनिटी में प्रिवलेंस का सर्वेलेंस करते हैं, कम्युनिटी में जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो फॉलोअप हो रहा है कि नहीं देखते हैं, कॉम्प्लायंस देखते हैं पेशेंट का, डाइटरी हैबिट देखते हैं, फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, तो WHO स्टेप अप्रोच इज़ ए टूल फॉर सर्वेलेंस ऑफ एनसीडी। एनसीडी के सर्वेलेंस के लिए स्टेप्स अप्रोच एक टूल है। ओके, उसमें हाइपरटेंशन भी एनसीडीज में इंक्लूडेड है। सो लेट्स सी व्हाट इज स्टेप्स अप्रोच। स्टेज 1 में हम पॉपुलेशन बेस्ड रिस्क फैक्टर असेसमेंट करते हैं। स्टेज 1 में पॉपुलेशन बेस्ड रिस्क फैक्टर असेसमेंट, पॉपुलेशन में जाके रिस्क फैक्टर का असेसमेंट हम करते हैं। स्टेज 1 का स्टेप 1, 2 और 3 है, एंड देयर इज स्टेज 2। ओके, तो स्टेज 1 का स्टेप 1 है क्वेश्चनेयर। हम यहाँ पे क्वेश्चनेयर फिल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हो आप कि फील्ड में जाके वो लोग पेशेंट के सामने उसका क्वेश्चनेयर फिल कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चनेयर इंक्लूड्स हिस्ट्री अबाउट टोबैको यूज़, अल्कोहल, डाइट जिसमें फ्रूट के वेजिटेबल्स कितने हैं, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, यस या नो हमको टिक करते जाना होता है। ओके, सो स्टेप 1 इज फिलिंग ऑफ द क्वेश्चनेयर अबाउट हिस्ट्री। स्टेप 2, फिजिकल मेजरमेंट। हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ऑब्वियसली कम्युनिटी लेवल सर्वेलेंस कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करेंगे ही, रिलेटेड टू हाइपरटेंशन से रिलेटेड है तो हाइट और BMI मेजर करेंगे, वेस्ट सरकमफ्रेंस मेजर करेंगे। ओके, बायोकेमिकल मेजरमेंट्स में मेनली अपन ब्लड ग्लूकोज, जिसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज इम्पॉर्टेंट, ये करते हैं, एंड लिपिड प्रोफाइल में टोटल कोलेस्ट्रॉल हम मेजर करते हैं। ओके, फास्टिंग ब्लड फिंगर प्रिक मेथड से एंड ब्लड विड्रॉ करते हैं फॉर कोलेस्ट्रॉल। स्टेज 2 is referral from PSCs to CSC or district hospital or medical college for further treatment and investigation, है ना। डाटा रिकॉर्डिंग of all the procedures या process during investigation and treatment या फॉलो अप या कंप्लायंस, ऑलवेज हम फॉलो अप वो करते हैं, डाटा रिकॉर्ड हम हर स्टेज का रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन का, ट्रीटमेंट का, फॉलो अप का और कंप्लायंस का। ओके, so this is end of the topic, and please subscribe because this will motivate us, okay, for further lectures and topic। and अगर आपको हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। ओके,
We will try to reply to each and everything, and we will provide with the resources. And important point about our lecture is everything is either taken from the textbook or from WHO website or from any authentic website. We do not make PPTs based on the newspaper or chat GPTs. Okay, so thank you for today's attending today's lecture.